Our guest today has been performing on stage since the age of 4. Pratik Gandhi was already a huge deal on the Gujarati stage and screen. Today, he is one of the most sought after actors in the country, and I'm super excited to have him on the show. Hi Pratik, and thank you for coming on this episode of Unscripted with Akarsh Khurana. Thank you This for is, having me. एक वो आद्यम थिएटर का ये एक इनिशिएटिव है एंड यू डिड अ प्ले विद आद्यम आई बिलीव इट वाज द हिंदी वर्जन ऑफ सुनील शानबाग Sunil प्ले Shanbhag, yes. मेरे पिया मेरे गए पिया गए रंगून रंगून. जो ओरिजिनली यू हैड डन इन गुजराती. No, so original, I guess Chirag Vora was doing this character that I did in Hindi. ओके वो गुजराती में उन्होंने किया. you were not part of the Gujarati production. No. हाँ, so you were part of the Hindi version. The Hindi version. And that premiered at Adyam, if I'm not Yes. mistaken. But before that, were you doing Hindi theatre as well, or was that a first tryst with Hindi theatre? Or I mean, not. Yeah, that was maybe the first Hindi play that I did. right? But there were a couple of Gujarati plays that I did which were translated in Hindi, and then we And you performed in Hindi those also. So how did this? So okay, I know, like we've been doing a lot of research, and like I said, मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता जो इंटरनेट पे आसानी से मिल जाती हैं. So I know that you were doing a corporate job. In fact, I think you were doing that when you did that film Beyar as well. Yes. Divyang Thakkar is a friend, and I had come to see that film. And but so how did the acting ka keeda happen? So acting happened much before engineering happened to me. Okay. Because I started performing on stage when I was in 4th standard. Oh wow. Okay. Yeah, that was the first time when I performed a small skit, and then I understood the magic of it. You were That hooked. something was there only in my mind. Okay. I didn't ask people to laugh here or clap here or enjoy these points, which I only felt in my mind that this might work, and it worked. And it did work. Yeah, it worked on the first show that I performed When in my you school. were in the 4th standard. 4th standard. Wow. Okay. So I felt there is a magic. Right. तो मैंने तो किसी को बोला नहीं था यार. मैंने खुद ने सोचा था कि यहाँ पर लोगों को और शायद हो हंसी गया, आएगी, और वो मतलब हुआ. काम तो हो वो गया कैसे वो, हुआ हाँ. इज वाज सो दैट वाज द फन. एंड देन आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन बीइंग ऑन स्टेज. फिर चाहे इलोक्यूशन कंपटीशन हो, फिर चाहे सिंगिंग कंपटीशन हो. बहुत ही बेसुरा गाता हूँ, पर तो मतलब ग्रुप में ऐसा है कि कोई शुरू पता नहीं करे चलता तो ना. बाद में जुड़ जाते हैं. बाकी सब चुप हो जाए तो पकड़े जाओगे. हाँ, तो नहीं पकड़े तो जाएंगे. कोरस में तो सब निकल जाते मतलब म्यूजिकल प्ले में भी मुझे बोला जाता था तुम शुरू मत करना. सुर तुम लगाना मत. हाँ. तो फिर चाहे मतलब वो हो या डांस कंपटीशन हो, डांस आप ग्रुप अच्छा डांस करते हो. हो, अच्छा तो नहीं, पर कर लेता हूँ. कर लेता ऐसा नहीं लगेगा किसी को कि ये कभी नाचा नहीं है. अभी फिल्म करियर में करना पड़ रहा है. हाँ, तो फिर तो वहाँ तो ध्यान आप ही पे होगा. पर एक्टिंग में भी ना देयर इज अ कांस्टेंट रिदम. तो Yes, अगर रिदम है आपके पास, तो क्योंकि प्ले के रिहर्सल में तो हमें पता नहीं होता कौन सा म्यूजिक बजने वाला है. तो यहाँ पता मतलब पर करते करते कुछ सालों के बाद पता चलता है कि यहाँ पर 100% म्यूजिक आएगा. हाँ. तो वो रिदम अगर पकड़ लें तो यू नो द पॉजेज, यू नो दिस थिंग, सो दैट हेल्प. तो मतलब 4th स्टैंडर्ड में जब पहली स्किट की, उसके बाद स्टेज पे जाना ऐसा था कि दैट इज अ सेकंड लाइफ, दैट्स अ सेकंड नेचर टू मी. Lovely. एंड दैट But is there anyone in the family who was into like the performing arts and stuff like that? the whole family per se actually they are all musicians. Oh, they are? all, yeah, they are Okay. all teachers Okay. by profession. Okay. but they are all into music. Oh, lovely. होल गांधी फैमिली Yes. तो सब टीचर है. Okay. मतलब हम लोग बचपन में यही बोलते थे कि खुद का स्कूल खोल दिया होता तो सारे सब्जेक्ट के टीचर्स घर पे ही थे. Actually ऐसा था. Actually. Okay. Wow. It's my dad, my mom, all my uncles, aunt, even few cousins, सब. And these were teaching in schools, colleges? Schools. Okay. Okay. तो सब So टीचर थे expectation, performance की expectation काफी high थी. पहले से. Student की. स्टूडेंट की, पर मतलब क्योंकि डैड वैसे टीचर थे कि वो नहीं होते एक टीचर ऐसे स्कूल में जो extra जो curricular बदमाश support बच्चों के करते भी दोस्त होते हैं. Oh, nice. वो वैसे वाले थे. Okay. Okay. तो तो ही वॉज प्रीटी कूल अबाउट इट. हाँ. एंड आर्ट से कनेक्शन बहुत सालों से था मेरा, मतलब बचपन से, क्योंकि Okay. पूरी फैमिली का वैसा था. तो मेरे फैमिली में सब विशारद, उपांतर विशारद और वैसे हैं, हवेली संगीत, शास्त्रीय संगीत एंड ऑल. आप पे ये प्रेशर कभी नहीं आया? ये प्रेशर नहीं आया, पर क्योंकि उसी माहौल में पला बड़ा तो तबला आई पिक्ड अप वेरी सून. Oh, so you do play. रिदम, Okay. तबला, वो सब में मजा आता था. और इनफैक्ट माय फादर पुश्ड मी Okay. कि तुम करो, बिकॉज आई सी देयर इज एन इंक्लिनेशन, सो यू बेटर एक्सप्लोर दिस. But this, then how come engineering? What was the, So that's a personal choice. you wanted Yeah, to do I that? wanted to, because I am equally passionate about engineering, Okay. especially mechanical engineering, production engineering, innovation, quality. These are the things that I like. But when you decided कि मैं engineering करूँगा, क्योंकि आपका passion था वो, तब आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं as an actor career बनाऊँगा?
करियर बनाऊंगा वैसा कभी नहीं सोचा नहीं सोचा था। Because जैसे मैंने बताया ना कि फैमिली में ऐसा था कि आर्ट तुम्हारी लाइफ का पार्ट तो होना ही चाहिए। है, बट यू वर एक्चुअली हैप्पी टू बी एन इंजीनियर। हाँ। ओके। और एक्टिंग साथ में करता ही था मैं थिएटर में। पर ये जो पूरा प्रोफेशनल वर्ल्ड है एक्टिंग का, पर से एक्चुअली प्रोफेशनल थिएटर वर्ल्ड भी जो है विच एग्जिस्ट ओनली इन बॉम्बे। मुंबई के अलावा प्रोफेशनल थिएटर कहीं नहीं होता। गुजराती थिएटर भी। गुजराती थिएटर गुजरात में बहुत होता है, हाँ। पर प्रोफेशनल लेवल पे आप उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते। ओह आई सी। क्योंकि सूरत में तो ऐसा है कि शायद एक ही सिटी है अपने पूरे देश में जहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है हर साल एक नाट्य स्पर्धा करती है। सूरत में। सूरत में ओके। त्रिअंकी नाट्य स्पर्धा होती है गुजराती थिएटर। गुजराती थिएटर। ओके। तो सूरत में 15 से 18 थिएटर ग्रुप्स हैं। ओह एंड दिस इज अ बिग थिएटर इट्स अ इवेंट। बिग थिएटर इवेंट। मतलब साल में एक बार होता है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मैनेज करती है पूरा, और उससे जीतने के लिए मतलब बाकायदा टीम्स हैं वहाँ पर। वाओ। 15 से 18 ये अराउंड अक्टूबर नवंबर के आसपास वहाँ कंपटीशन होती है। तो वो उस थिएटर में ये होता है 15 से 20 दिन का पूरा कंपटीशन। वहाँ पर सबकी मीटिंग होती थी बहुत, हाँ थिएटर वालों की। हाँ। तो सूरत में ये अभी भी चलता है हर साल ये It's still कंपटीशन। happening, इट इज this- स्टिल okay, हैपनिंग। okay. मतलब मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 25 सालों से तो ये हो ही रहा है। आई हैड नो आइडिया, दिस इज अमेजिंग। सो तो पर इसमें क्या होता है कि हमने एक चीज़ बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की कि हम लोग जो प्ले बनाते हैं उसे देखने लोकल लोग उतने आते नहीं हैं। कंपटीशन में सब आ जाएगा, सब भर जाएगा, हाँ। क्योंकि एवरीबडी लुक्स फॉरवर्ड टू दैट कंपटीशन। बट जब हम टिकट शो अगर रखें तो लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है लोकल प्ले के लिए। तो आई हैड टू टेक द रूट ऑफ डिप्लोमा ओके आफ्टर 12th। ओके। तो अब हुआ क्या कि सारे दोस्त छूट गए। मैं और मेरा दूसरा एक दोस्त, हम 2 ही लोग डिप्लोमा में गए। अच्छा। तो एक तो वो ट्रॉमा था, और डिप्लोमा के बाद टाइम था, और तब उन लोगों के टाइमिंग्स अलग, तो हम लोग मिल नहीं पाते। ओह सो आई वॉज एक्चुअली रेस्टलेस। तो डिप्लोमा के टाइम पे टाइम जो बचता था ना उसमें मैं रेस्टलेस हो गया था। मेरे फादर ने बोला कि यार यू वर डूइंग थिएटर इन स्कूल ऑल्सो, यू जॉइन देम, यूज़ योर टाइम। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड दिस कॉम्पिटिशन्स विद कश्यप। हाँ। सो 99, 2000, 2001, 2002, 3, 4 तक मैंने 4-5 साल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। और मुझे ये बताइए, ये जो यहाँ पे जितने सारे ग्रुप्स परफॉर्म कर रहे हैं, दिस वाज लोकली रिटन स्टफ, और यू डूइंग क्लासिक्स, और व्हाट वर यू डूइंग? मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अच्छा। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। तो राइटर्स भी थे ग्रुप में? बहुत सारे, जो लिखते थे नाटक? बहुत सारे, बहुत सारे। अच्छा। सो मौलिक नाटक भी बहुत बनते थे, नई स्क्रिप्ट्स बनती थी, गुजराती लिटरेचर से रिलेटेड कुछ बहुत होता था, काफ़ी सारा ट्रांसलेटेड वर्जन्स भी होते थे। ओके। So then when did the shift to Bombay or this profession, when did that happen? सो डिप्लोमा के बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए आई वेंट टू जलगांव, Okay. बिकॉज गुजरात में वो पॉसिबिलिटी नहीं थी अच्छा। डिप्लोमा टू डिग्री। हाँ, correct. सो आई वेंट टू जलगांव, और उसके बाद 2004 मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्लस डिग्री इंजीनियरिंग दोनों हो गया। सो 2004 आई केम टू बॉम्बे Okay. विद दिस थॉट कि इंजीनियरिंग एंड एक्टिंग अगर दोनों में साथ में काम करना है तो मुंबई इज़ द ओनली प्लेस। But you will look for a job and by the side you will do. बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि right. कैसे पैन आउट होगा सब कुछ। Correct. मैं किसी को जानता नहीं था यहाँ। Correct. तो थिएटर में ये चीज़ पता चली कि ऑडिशन जैसा कुछ होता नहीं है। यू गो मीट, क्लिक हुआ एंड मोस्टली देर आर ग्रुप्स, पीपल टेंड टू वर्क विद सिमिलर सेट ऑफ पीपल। Correct. और वो उस टाइम और ज़्यादा था, अब थोड़ा एक्सचेंज बढ़ गया है। हाँ। उस टाइम थोड़ा सा फ्यूडल होता था। हाँ, कि मतलब और सबके अपना क्लिक बनाए हुए थे सब। और उसमें भी ऐसा होता है कि अगर इन्होंने एक साल किसी और के साथ काम किया तो नेक्स्ट प्ले में आपके साथ वापस नहीं करेंगे। करेक्ट करेक्ट। विच आई स्लोली अंडरस्टूड कि ये अलग ही वर्ल्ड है। हाँ वो अलग था एक तो। हाँ। तो अब थिएटर में किससे मिलूंगा, कहाँ जाऊंगा, और मेरे दिमाग में सिर्फ थिएटर था बिकॉज आई वॉज कमिंग विद दैट ट्रेनिंग एंड दैट वर्ल्ड। टीवी तब बहुत बड़ा हो गया था उस टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2004, 5, 6। But TV was not something you. नो आई मीन आई वुड नॉट लाई, आई ट्राइड। मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए एंड आई वॉज रिजेक्टेड आउटराइट। मतलब कभी क्लिक ही नहीं हुआ वो, क्योंकि तब वो मतलब नॉर्थ से जो लोग आते हैं देयर डिमीनर इज डिफरेंट, देयर फिजिक इज डिफरेंट, देयर स्किन कलर्स आर डिफरेंट, एंड टीवी में मोस्टली दैट यू सीन ऑल दोज काइंड ऑफ पीपल। सो आई वेंट फॉर एन ऑडिशन, बट अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 स्मॉल थिंग्स नथिंग क्लिक। Nothing clicked. Okay. और वो पता भी नहीं था कि कब तक चलेगा ये ऑडिशन का सिलसिला। तो आई हैड टू डू समथिंग, और थिएटर वॉज माई प्लेस। मुझे लगता Correct, था कि वो ये तो मेरी अपना जगह domain है, है, मतलब हाँ। मैं जाके थोड़ा और कॉन्फिडेंटली बात भी कर पाऊंगा कि करने दीजिए। हाँ। मैंने लोगों से मिलना शुरू किया। आई मेट मनहर घड़िया फर्स्ट, Of course. हाँ. उनकी डॉटर को मैं बचपन से जानता था। अच्छा। शी इज़ माई कजिन्स फ्रेंड, सो दैट्स हाउ वी okay, न्यू। okay. मतलब वैकेशन में जब भी आते थे मिलते थे। Okay. तो एक ही आदमी को मैं ऐसे जानता था हु इज़ कनेक्टेड टू थिएटर,
तो मैं उनसे मिला, ही सेड कि नया कोई प्ले होगा तो आई इंट्रोड्यूस। हाँ हाँ एक दो लोगों से बात हुई, फिर फिरोज भगत Yes. उनका जो एक थिएटर ग्रुप है वहाँ एक नया प्ले बन रहा था, अच्छा एंड ही सेड के मिल लेना एक बार जाके। मैं मिला, फिर कुछ हुआ नहीं, कुछ फ़ोन वोन आया नहीं, कहीं कास्ट पता नहीं हुए उसमें? अच्छा, नहीं, उसमें पता नहीं चला अच्छा, कि अच्छा। वो, फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो प्ले ऑलमोस्ट रिलीज़ होने वाला है अब तो 15 दिन में। ओह अच्छा मैंने अच्छा, बोला हो गया होगा। हो गया होगा, एंड आई वॉज ऑल्सो सर्चिंग फॉर अ जॉब और समथिंग दैट आई कैन डू। राइट। और फिर दिवाली आने वाली थी तो मैं सूरत चला गया कि घर जाएंगे, एंड देन काजल कॉल्ड मी कि वो लोग बुला रहे हैं प्ले के लिए। प्ले यही वो जो फिरोज भगत वाला सेम नाटक प्ले, था? अच्छा बोले प्ले ओपन हो रहा है दिवाली के बाद। ओके हाँ मतलब पर दिवाली के बाद मतलब 8-10 दिन ही बचे हैं, हम्म, अब अभी बुला रहे हैं, मतलब आई एम श्योर कि ऐसा कुछ करने लायक होगा नहीं, अच्छा वरना कि दे कुछ छोटा वुडंट रोल कॉल होगा, मी नो, हाँ, बिकॉज आई एम अ न्यू कमर फॉर देम। यस यस मैंने जो किया है वो मुझे पता है, उनको थोड़ी पता है। करेक्ट। तो अगर 10 ही दिन के लिए बुला रहे हैं तो रोल कुछ ऐसा होगा, कुछ ही हाँ, होगा यार, हाँ हाँ मतलब मिल लो जाके। हाँ मैं फिर दिवाली, मुझे याद है न्यू ईयर के दिन ही मैं वहाँ से ट्रैवल करके मुंबई आया था। हाँ नेक्स्ट डे आई मेट देम, तो उन्होंने लाइंस बुलवाए कि यहाँ से एंट्री, यहाँ से एंट्री, ये वो, एंड दे सेड इनका नाप ले लो। मतलब मुझे तब पता चला कि वो कहता है आई एम डूइंग द प्ले। डूइंग द प्ले एंड इट वाज अ गुड पार्ट। या इट वाज अ गुड पार्ट, Okay. मतलब बड़ा था पार्ट हाँ, और वैसा था। तो दैट वाज माय फर्स्ट प्ले What इन play was कमर्शियल। this? What- दिस वाज कॉल्ड आ पार के पेले पार, ओके गुजराती प्ले। Okay. वी स्टार्टेड फ्रॉम अहमदाबाद। ओह यू ओपनड इन अहमदाबाद? हाँ, ओपन इन अहमदाबाद फॉर Okay. 30 shows वाओ हाँ। फर्स्ट मंथ। दैट वाज माय फर्स्ट एवर लॉन्गेस्ट स्टे इन अहमदाबाद। बट जॉब का तब कोई असाइनमेंट नहीं था? तब तो मैं फ्रीलांस कर रहा था। आपने एक assignment खत्म कर लिया था। किया हाँ, था, okay, दूसरा okay. ये हुआ। हाँ फिर ये इस प्ले के हमने कुछ 250 शो किए। वाओ इस प्ले की वजह से मेरा पासपोर्ट बना। दुबई में 2 शो थे। लवली। तो पहली बार फ्लाइट में बैठा, दुबई गया, शोज़ किए, तो ये कुछ 250 शो चला। दैट वाज द ओनली कमर्शियल प्ले दैट आई डिड एवर। ओके बिकॉज ये प्ले कर रहा था तब मैंने कुछ नाटक देखे, तब मैंने मरीज देखा था, अच्छा मनोज झा का। हाँ मनोज झा का हाँ और ये लगा कि यार करना है तो ऐसा कुछ करना है, क्योंकि उसमें करने कुछ मिलेगा। दिस इज़ गुड, मतलब यू गेट गुड नंबर ऑफ शोज एंड ऑल, आई मीन नथिंग बैड अबाउट दैट ऑल्सो, बट समहाउ आई फेल्ट कि मुझे इसमें और कुछ करने मिलेगा शायद। सो फिर मैंने कोई कमर्शियल प्ले किया नहीं। 1-2 जगह बात की पर वो कुछ मिला भी नहीं, एंड सब सही हुआ एक्चुअली, नहीं मिला तो, क्योंकि मैं उस हिसाब से फिर देन आई कॉन्सेंट्रेटेड हियर। तो मैंने एक्सपेरिमेंटल प्लेज ही किए हैं। मैं बताऊं आपको 2006 से लेके अभी तक। एंड देन यू आप मनोज झा के पास गए थे? मनोज झा के तो साथ। वहाँ उनके साथ फिर आपने सो 2005 और 2006 पृथ्वी फेस्टिवल वाज माय फर्स्ट एवर पृथ्वी परफॉर्मेंस। व्हाट प्ले वाज दैट? मास्टर मेस्ट्रो स्वामी। ओके Manoj Shah did something which he is known for, हाँ. an absurd experiment that we did. हम लोग we are 30 to 35 people on stage for 45 minutes without dialogue. ओह वाओ Prithvi Festival. हाँ So we did 2 shows, 6 o'clock, 9 o'clock. And I guess from that onwards I kept working with Manoj Shah for the Right. longest time. We still work together. राइट राइट हमने बहुत सारे प्लेस किए, और उसके साथ मैंने थिएटर के पेरिफेरी में जितना था ना वो सब कुछ किया है। लाइक प्ले रीडिंग, पोएट्री रिसिटेशन, बुक लॉन्च पे जाके किसी का कोई पैराग्राफ पढ़ना है, नाइस कविता की कोई बुक बनी है तो उस पर कविता पढ़ लेनी है, रेडियो नाटक। और इस दौरान लेकिन आपका ये आप इंजीनियरिंग के कोई असाइनमेंट नहीं, ले रहे थे? इंजीनियरिंग के असाइनमेंट भी साथ में करता था, चल रहे थे? अच्छा क्योंकि अच्छा। एक्सपेरिमेंटल प्लेस का सबसे बड़ी कि गैप होता बढ़िया है। चीज़ मुझे जो लगी वो ये थी कि मुझे नंबर ऑफ शोज़ का कमिटमेंट नहीं देना है। वो जब डेट आती है तो हाँ प्ले ओपन होगा सीधा अहमदाबाद से, 35 दिन जाना है, 40 दिन जाना है, वो सब नहीं होगा इसमें। इसमें प्लेज शोज होंगे पर प्लान्ड होंगे करेक्ट। कि इस वीकेंड है, या अभी सीधा जून में 25 तारीख को बेंगलोर में शो है, विच आई कैन प्लान। ये मुझे बताइए कमर्शियल नाटक जब आप बोल रहे हैं जो आपने एक ही बार किया वो रोज होते हैं? गुजराती कमर्शियल रोज होते हैं, जैसे इट्स एन इंडस्ट्री इन जैसे मराठी में भी रोज होते हैं जैसे, और ये फुल जाते हैं सब? हाँ, बिकॉज ये क्या है कि सोल्ड आउट शोज होते हैं हाँ, ज़्यादातर। हाँ जैसे महीने में आपने 35 शो किए तो महीने में 4 वीकेंड है, आपने 4 ही शो टिकट शो किए हैं। 4 शो के टिकट बेचे हैं? हाँ, 4 शो, बाकी सब इनवाइटेड बाकी सब तो इनवाइटेड शोज हैं ग्रुप्स के। अच्छा जैन सोशल ग्रुप, कपूर सोशल ग्रुप, जैन जागृति ग्रुप, ये ग्रुप, दैट्स एक्चुअली अ बिग सिस्टम इन द। और एक टाइम पे जितना मुझे पता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुंबई में कुछ 800-900 ग्रुप्स हैं सोशल ग्रुप्स, उससे भी ज़्यादा होंगे।
वैसा ही सिस्टम गुजरात में भी है हर जगह। या नो सी, मेरा क्या है कि आई ग्रो अप विद माय फादर बेसिकली डूइंग एक्सपेरिमेंटल थिएटर। जी। तो मुझे तो पृथ्वी एनसीपीए समझ आता था जब मैं ये कहानियाँ सुनता था और वंस मोर वाली कहानियाँ सुनता था कि शो के दौरान वंस मोर कराते। मेरे लिए तो कल्चर शॉक था। मैं बोला कि ये कैसे, हमारे नाटक में कोई गलती से भी बोल दे वंस मोर तो हम तो हिल जाएंगे, हाँ। हमको तो समझ नहीं आएगा कि कैसे करना है। But that way these guys are champions. Of course. They can stop play at any time and pick it up from any time. Exactly. In fact, I have seen commercial play के इतने सारे मेरे दोस्त हैं, इतने मास्टर हो चुके हैं वो लोग कि ऑनलाइन एडिट भी कर लेते हैं प्ले। क्या बात है। जैसे कभी कभी कुछ नाटकों में ऐसा होता है, कुछ शोज़ में कि 9 बजे का शो 11 बजे शुरू करते हैं, क्योंकि अब ग्रुप का है, शो ले लिया है उन लोगों ने, तो वो लोग अपना डिनर का प्लान भी साथ में रखा है, तो सब डिनर खत्म करके धीरे धीरे बाय द टाइम दे कम फॉर द शो इट इज़ 2 hours वो लेट। तो माहिर हो जाते हैं। बिकॉज हमारी पृथ्वी में भी हमने मतलब वो एक कहानी जो बार बार सुनाई जाती है जो एक्चुअली दर्शन जरीवाला की कहानी है, क्योंकि वो करते थे काफ़ी। वो अपने एंट्री के 2 मिनट पहले आते थे, फ़ोन पे होते थे, स्टेज पे घुसने से पहले फ़ोन किसी को दिया, चप्पल पहने और लाइन ले ली। एंड हम यहाँ बोल रहे हैं कि 7 घंटे पहले आएगी पूरी कास्ट, रिहर्स करेगी। ये तो लग्जरी है। तो ये तो सच में लग्जरी है। ये लग्जरी मुझे तो कभी नहीं मिली। हाँ, तो अभी मुझे कहीं लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं यार पहले आना है, कैरेक्टर में घुसना है। नहीं करेक्ट। ये लग्जरी नहीं, क्योंकि तब तक मैं जॉब के साथ करता था ये। धीरे धीरे तो मेरे असाइनमेंट्स भी बढ़ गए। एनपीसी में मैंने 4 साल में 13 असाइनमेंट्स किए। ओके। एंड दोज आर बिग बट असाइनमेंट्स। ट्रैवलिंग और इन बॉम्बे? In Bombay also and traveling outside also. And those are big assignments. So with lot of responsibility and lot of things, matlab you have to concentrate, make those detailed Excel sheets and lot of reports calculations and and all, stuff, yeah. reports and all. तो अब 6 बजे तक तो आप उधर हो आप जगल कर रहे हैं। हाँ, और 8:30 का शो है पृथ्वी में। करेक्ट। सो यू शो अप एंड तो मतलब यहाँ से निकले, वहाँ पहुँचे 8:30 के शो में, मतलब मर के 8 बजे पहुँच के सीधा स्टेज पे पहुँच जाना एंड स्टार्ट द प्ले। तो दैट आई डिड फॉर 12-15 ईयर्स एंड उसके साथ मैंने प्लेस किए। वो जो आपको अब तब तक तो आपका एक रूटीन बन गया था। हाँ। पर तब ना पहला हूँ चंद्रकांत बख्शी करके एक मोनोलॉग, ओके, 2 घंटे का मोनोलॉग है, ये मनोज शाह के साथ। अब चंद्रकांत बख्शी गुजराती लिटरेचर के बहुत ही ख्यातनाम राइटर हैं, बहुत ही विख्यात राइटर हैं, और उन्होंने आग लिखी है, मतलब ही वाज सो फेमस। तो उनकी लाइफ जर्नी पे प्ले बना रहे हैं। अच्छा। एंड इट्स अ मोनोलॉग, राइट। सो फर्स्ट एवर फुल लेंथ मोनोलॉग ऑफ 2 hours। सो मनोज शाह ने बोला कि पर तुम तो जॉब कर रहे हो, तुम तो यार टाइम नहीं दे पाओगे इतना जितना चाहिए। हाँ, जितना चाहिए, क्योंकि ये वो भी पहली बार मोनोलॉग कर रहे थे। करेक्ट। तो बोले इसमें तो टाइम लगेगा और मुझे पता नहीं है इसमें, तो जाने दो। इट वेंट टू चिराग। ओके, चिराग हो रहा। हाँ। सो फिर मुझे पता चला चलो ठीक है यार, नहीं मिल रहा है तो नहीं सही। पता चला फिर चिराग कोई और प्ले में बिजी हो गया। ओह, तो मनोज शाह ने मुझे एक बार फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ घर पे। मैं पार्ला में रहता था तब। ही केम, ही गिव मी द स्क्रिप्ट कि बिकॉज मैंने बहुत पेस्टर किया था उनको कि सर ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ नहीं कर पाएंगे, करेंगे ना, देखेंगे, कुछ करेंगे, थोड़ा टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा रिहर्सल का। तो ही गेव मी द स्क्रिप्ट, ही सेड कि देख लो, पढ़ो, फिर बात करते हैं। देन वी डिसाइडेड कि यार रिहर्सल करेंगे पर शाम को करेंगे, काम के लेट नाइट। और मेरा ऑफिस था वाशी में, रहता था पार्ला में। बाप रे। तो पार्ला से वाशी जाना, जॉब ख़त्म करके बाद में आना, तो रिहर्सल हमारे होते थे रात के 8:30 के बाद। 8:30 से 11:30 12 वैसे रिहर्सल किए। वो प्ले ओपन कर दिया हमने, बेआर के टाइम की बात है। अच्छा। तो तब बेआर भी ऑफर हुई थी, तो वो प्ले बेआर was the first Gujarati film that I you did. did. And so in terms of camera work, that was your first? No, so in terms of camera work, my first work was a film called Yours Emotionally, Okay. which is an LGBTQ film festival film in 2006. In Hindi or Gujarati or? It's an English, It's Hindi an English film, film. Okay, crossover film thing. Okay. So you had already shot that. Yeah, I shot that. That was my first ever camera experience. Okay. मतलब वो फेस्टिवल की फिल्म थी, वैसे कभी थिएट्रिकल रिलीज और ये नहीं थी, बट या तो फिर ये प्ले ओपन किया 2012 में हमने, और बेआर शूट की मैंने। ऑफिस से मैंने छुट्टी ली थी कुछ 25 दिन की बेआर के लिए, जाके शूट करके आ गया। फिर उस फिल्म के प्रमोशन में क्या हुआ कुछ पता नहीं है मुझे। बिकॉज टाइम नहीं दे पाया। दिव्यांग और कविन अकेले गए थे प्रमोशन, दिव्यांग, कविंग एंड संवेदना, वो लोग अकेले गए थे प्रमोशन के लिए। मैंने बोला यार 25 दिन की छुट्टी ली है ना, अब 2 साल तक छुट्टी नहीं ले पाऊंगा। करेक्ट। एंड बेआर डिड वेरी वेल। तो मुझे सिर्फ फ़ोन पे पता चल रहा था कि बहुत अच्छा हो रहा है, और तब फेसबुक पे ज़्यादा सब होता था, तो उधर पता चला कि बहुत अच्छी चली है फिल्म। हाँ, क्योंकि मैं तो बेआर रिलीज होने के 1.5 साल बाद तक तो अहमदाबाद भी नहीं जा पाया हूँ। ओह।
And then how did it? When did you finally take a decision that now? सो आफ्टर बेयार हाँ. 2 साल के बाद, मतलब बेयार के बाद मुझे काफ़ी सारी गुजराती फिल्में ऑफर हुई, Okay. और तब तक तो नाटक में भी ऐसा हो गया था कि पीपल स्टार्टेड नोइंग मी, Right. क्योंकि बहुत सारे प्ले कर लिए थे Right, मैंने, right. रिप्लेसमेंट्स बहुत कर लिए थे। मेरे पिया गए रंगून का गुजराती वर्जन जो था, हाँ. उसमें सूत्रधार की भूमिका जो करते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था शो के पहले। मैं जो ऑफिस गुजराती में- वर्जन में गुजराती था, हाँ, वर्जन हाँ. में, मैं शो पे था, हाँ. तो मनहर घड़िया का फ़ोन आया मुझे कि मैंने सुनील सैनबाग से बात की है, तू ये शो आज का कर ले, उस दिन का. उस दिन का। हाँ. अब मैंने उसके पहले प्ले देखा था, देखा था. अच्छा. हाँ. पर तो मैं बोला कि कितने बजे शो है। मुलुंड में शो था रात का 8:30 बजे का, हाँ. और मैं वाशी में था ऑफिस में। तो मैंने वहाँ से आधे दिन की छुट्टी ली, 2:30 बजे मैं पहुँचा मुलुंड ऑडिटोरियम। हाँ. चिराग, सचित, सुनील शानबाग और हम लोग सब थे। उन्होंने स्क्रिप्ट दिया मुझे कि ये है। अब उसमें तो सिंगिंग बहुत सारा है और सूत्रधार है, मतलब पूरा प्ले पता होना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या है। तो आई हैड अराउंड 3 hours, 3.5 hours. To learn it all. So I read the lines and then I did that show. Wow. तब मतलब ऐसे But शो वो करता था हमारे मैं। हमारा थिएटर का फायदा ये होता है कि असली जो बेस्ट कहानियां हैं वो थिएटर से आती है ना, क्योंकि हमारे ये सब जो वांदे होते हैं जो हमको लास्ट ये किसी को नहीं पता। ये वो सिर्फ बेस्ट कहानियां आती हैं हाँ। वहाँ से। हाँ, तो यू वर सेइंग कि बेयार के बाद काफी गुजराती फिल्म के ऑफर मिले आपको। काफ़ी गुजराती फिल्म्स के ऑफर आए, पर तब ऐसा था कि एक बार 25 दिन की छुट्टी लेके एक फिल्म शूट कर ली है, तो अब 2 साल तक एक साथ इतनी छुट्टी मिलना डिफ़िकल्ट है। करेक्ट। और तब ऐसा था कि मैं जहाँ काम कर रहा था वो सीमेंट प्लांट हम लोग बना रहे थे। ओके, बॉम्बे में ही? नहीं, अच्छा। नागपुर, फिर मध्य प्रदेश, सो यू वर ट्रैवलिंग अ लॉट यूपी। आल्सो? मेरा ट्रैवलिंग भी बहुत होता था, ओके। बिकॉज आई यूज्ड टू लुक आफ्टर मैन पावर प्लानिंग, प्रोसेस डिज़ाइन एंड ऑल दोस। बट ये जैसे आपने बोला आपने 25 दिन निकाले, आप प्रमोशन पे नहीं रह पाए, आप मतलब सक्सेस पूरी तरह शायद एंजॉय नहीं कर पाए। डिड यू एंजॉय मेकिंग बेयार? डिड यू एंजॉय एक्टिंग फॉर द कैमरा इन दैट? बहुत मज़ा आया उसमें। Okay. बहुत मज़ा आया उसमें। ओके, बट नॉट इनफ कि नौकरी छोड़ दूं। नहीं। तो अच्छा, उसमें क्या था, वो मज़ा, मतलब मज़ा आया, हाँ, पैसा नहीं आया। हाँ, वो तो चलो, हाँ, ठीक है। तो और मुंबई में, बिकॉज मैं तो विदाउट एनी बेस आई केम टू बॉम्बे Correct. फ्रॉम सूरत। या Now at that point I had a full-fledged family. Correct. So I got my parents also here. Oh, okay. I had my younger brother. Okay. I got married in 2008. राइट। So we were full-fledged family. और उसमें ऐसा था कि a corporate job which has a good handsome amount every month राइट, will help you survive in Bombay. डेफिनेटली। तो मेरा सबसे पहला तो ये था कि यार अगर ये स्टडी इनकम और इसके साथ है तो आई कैन सिलेक्ट स्क्रिप्ट्स। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि जो हाथ में आएगा करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, बट प्रैक्टिकल अप्रोच था। तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा, धीरे धीरे आराम से करेंगे। दैट्स द रीजन दैट आई कुड सर्वाइव फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन एक्सपेरिमेंटल प्लेस, करेक्ट। कि मैं अपने हिसाब से प्ले करता था, मुझे उसमें मज़ा आता था, जो स्क्रिप्ट में मज़ा आया वो बिकॉज किया। इनकम सोर्स कुछ और था ना, तो हाँ। तो कभी मतलब वो एक जाके नाट्य पठन भी अगर करना है कहीं पर, तो पठन का वो 250-300 रुपये का कवर मिलेगा, चलेगा, बिकॉज आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन इट। करेक्ट। सो वो सोच से कर रहे थे काम। अब बेयार के बाद तो ऑफर्स बढ़े, पर मेरे पास छुट्टी लेने का स्कोप नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि कुछ बहुत ही अमेजिंग था कि कर लिया। करेक्ट। हाँ, फिल्म्स थे, तो वो एक था, एक लालच कि फिल्म्स करने मिल रही हैं। और फिर 2 साल बाद, बेयार के एग्जैक्टली 2 साल बाद मुझे रॉन्ग साइड राजू ऑफर हुई। वो स्क्रिप्ट ऐसी थी दैट एक्चुअली इट पुल्ड मी कि यार ये तो करनी है। हाँ। तो मैंने वापस छुट्टी ली। अब तब तक मेरे अकाउंट में, मैंने जब जॉब भी छोड़ा 2016 में, तब मेरे अकाउंट में आप 2016 तक कर रहे थे? हाँ। ओके। तो रॉन्ग साइड राजू शूट की, रॉन्ग साइड राजू रेडी हो गई फिल्म। तब मैंने मोहन मसालो ये प्ले ओपन किया नया, विच इज़ अनदर मोनोलॉग। राइट। तो उसमें भी अभी इश्यू आया कि रिहर्सल कब करेंगे। तो तब हमने मॉडल चेंज कर दिया कि मैं अकेला ही हूँ ना सर रिहर्सल पे, सुबह 5:30 बजे रिहर्सल करते हैं। तो 5:30 से 7:30 रिहर्सल करना है, फिर ट्रैवल करेंगे, ऑफिस जाएंगे, और रात को वापस आके मेरे पिया गए रंगून का रिहर्सल करना है। राइट। आद्यम में वो भी ओपन होना था। राइट। सो आद्यम में ये ओपन हुआ, और 4 दिन बाद मोहन मसालो ओपन हुआ। दोनों आगे पीछे ओपन हुए। तो ये मैं जॉब के साथ साथ कर रही है। रॉन्ग साइड राजू शूट कर लिया, अब रॉन्ग साइड राजू रिलीज़ होने वाली है सितंबर में। और उस टाइम पे कंपनी में भी बहुत कुछ चेंज हो रहा था अच्छा। इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई वाज वर्किंग इन। सो दैट वाज अ टाइम दैट आई थॉट कि यार दिस इज़ इट, आई गेस। अभी ये नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है कि अभी अगर 100% मैं नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज एज ऑल्सो मैटर्स बियॉन्ड अ पॉइंट। इफ आई वॉन्ट टू डू समथिंग रियली गुड, श्योर, श्योर।
in a lead space or in a protagonist space, as far as films are concerned. So 26th August 2006 was the last day in office. नाइस. और जॉब छोड़ी 2016. हाँ 2016. हाँ. उसके बाद मैंने 6 गुजराती फिल्में की. अरे Wrong Side Raju did very well. Very well. It won national National award for award, the yes. Gujarati film after so many years. That a Gujarati film won. Yeah. Oh wow. Okay. Okay. उसके बाद काफ़ी गुजराती फिल्में की. उसके बाद प्ले में भी मज़ा आने लगा. मतलब बहुत सारे शोज़ किए मैंने. मोहन तो 3 लैंग्वेज में ओपन कर दिया था हमने, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती. Oh okay. Same You've monologue done it in English also. Yes, Okay. same monologue in 3 different languages. Okay. Okay. और फिर 2018 में स्कैम का ऑफर आया. But in the middle, you had done a couple of Hindi films as 2 well. हिंदी फिल्म्स. हाँ. 2017-18 में ही शूट किए थे मैंने. हाँ. और उसी में रिलीज भी हुए. मित्रों करके एक फिल्म की थी. Correct. वो याद है मुझे. हाँ. जैकी के साथ, जैकी जी, बगनानी जैकी और बगनानी एक के की थी मैंने लवयात्री. But it was a typical like a Gujarati space that you were Gujarati being space. cast in because of the right. Yeah. तो कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ मतलब वो वैसा ही था कि क्योंकि गुजराती बैकग्राउंड थी और गुजराती बैकग्राउंड वाले एक्टर्स चाहिए थे, तो शायद मैं पहुंच स्कैम की तो आपने बहुत बात की है. मैं उसमें कुछ और बात करना चाहता हूँ. बिफोर वी गेट टू स्कैम, व्हाट आई वांटेड टू चेक वाज कि अब आपने 6-7 गुजराती फिल्में कर ली थी, ये 2 हिंदी फिल्में भी की थी. इंडस्ट्री में क्या फ़र्क लगा आपको? बहुत सिमिलर है. सिमिलर है. कोई दिक्कत, कोई चेंज नहीं है. इट्स जस्ट दैट द कैनवस इज बिगर हियर, इन द हिंदी द बजट्स आर बिगर हियर. राइट. वो बहुत बड़ा फ़र्क है और उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. पर गुजराती में जैसे किसी भी रीजनल सिनेमा में आप काम करो तो उसमें होता यह है कि कम रिसोर्सेज में आपको मैक्सिमम अचीव करना है. मुझे तो एक्चुअली हमेशा लगता है कि रीजनल सिनेमा ज़्यादा एफिशिएंट है. उसीलिए ना हाँ, तो वो कि कम रिसोर्सेज में, लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम अचीव करना है. करेक्ट. सो देयर प्लानिंग हैज टू बी ऑन पॉइंट. बेटर देयर क्रूज शेड्यूलिंग, क्रू, मल्टीटास्किंग. So and then scam happened 2018 and that 2018 में स्कैम की बात शुरू हुई. तब मैं एक हिंदी फिल्म शूट की थी मैंने, भवाई, which got released. yes जो बाद में रिलीज हुई Z5 पे है अभी. So भवाई was supposed to be my first ever हिंदी फिल्म as central protagonist. नाइस. मित्रों की थी मैंने. मित्रों में जो एक एसोसिएट डायरेक्टर थे, ही गॉट मी इंट्रोड्यूस टू हार्दिक हु वाज मेकिंग भवाई एंड दैट्स हाउ आई डिड दैट. और भवाई तो मुझे उस पे से बहुत होप्स थे कि यार पहली हिंदी फिल्म ऐसे मिली है, मज़ा आएगा. अब वो रिलीज़ नहीं हो पाई जल्दी. वो खैर स्कैम के बाद रिलीज हुई. ये हार्दिक मेहता ने बनाई थी. हार्दिक गज्जर. अच्छा हार्दिक. अच्छा ओके. तो भवाई का शूट कर रहा था. हाँ. मैं वहाँ पर कच्छ में. अच्छा. और तब मुझे हंसल सर का फ़ोन आया था. Oh, he called you. He called knew me he कि wanted you for the I am part. हंसल Okay. मेहता and making इसमें कोई something. ऑडिशन वगैरह कुछ नहीं था. तो वांट टू मीट, मिलते हैं एक बार. हाँ. अब मैं सोच नहीं पा रहा कि कोई प्रैंक कर रहा है कि क्या है, हंसल मेहता का कॉल मतलब. पर फिर मुझे अभिषेक का कॉल आया, अभिषेक जैन हु मेड बेयर, Yes. कि हंसल सर ने नंबर लिया है हाँ. तो ही माइट कॉल. Call you. हाँ. हाँ अभी फ़ोन आया था Validity उनका, हो गई. मतलब, हाँ. फिर मुंबई जाके मैं उनसे मिला. उनसे तो क्या ही मिला, मैं पहले तो ऑडिशन दिए, ऑडिशन का प्रोसेस हो गया. फिर मैं उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा कुछ एक बना रहे हैं हम, हर्षद मेहता और इसकी स्टोरी पे. सो लेट्स सी इफ इट इंटरेस्ट यू एंड ऑल. Right. और लेट मी नो इफ़ यू हैव अ मैनेजर और समथिंग. बोला क्या मैनेजर सर, जो है हम ही हैं, आप बताइए कब करना है. हाँ. पर वो इमिडिएटली हुआ नहीं शुरू. Okay. तो इट गॉट डिलेड बाय ऑलमोस्ट अ ईयर एंड अ हाफ. But you knew you had got the part or you didn't? नहीं, तब बात हुई थी सिर्फ. अच्छा. फिर एग्रीमेंट हुआ पहला. हाँ. तो आई न्यू दैट आई एम Doing डूइंग it, इट. हाँ. बट फिर तो वो कंपनी वंपनी चेंज हो गई जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ, वो नहीं हो रहा था एंड इट वाज नॉट बीइंग मेड. मेरे फादर की डेथ हुई और उसके 4-5 महीने बाद अगेन इट स्टार्टेड. They started conversation. कैन लेट्स डू इट नाउ. तो फिर हमने 2019 में शूट किया है स्कैम. And like I was saying, scam. I know people have spoken a lot to you about scam. I was interested in 2 things about it. One was कि what kind of preparation did you do for scam? Like how did you go about it? Or was the script so well worked that actually most of the work was done for you? या आपको अपनी तरफ से बहुत invest करना पड़ा था in terms of research of your own? Because you're playing a character that's not too long ago. Yeah. मतलब I was very young, but I remember his photographs in the newspaper. Everybody remembers the scam, Yeah, right? yeah, yeah. So what was and were you stressed about that, about pulling it off? No, so I was not stressed at all. Okay. एंड एज आई टोल्ड यू दैट मैजिक कीप्स हैपनिंग विद मी. तो हुआ था ये कि मैंने इसके पहले जो 2 बड़े बड़े मोनोलॉग किए थे ना 2-2 घंटे के, विच वर लाइफ स्टोरीज. Correct. विच वर एक चंद्रकांत बायोग्राफिकल बख्शी और एक कैरेक्टर्स. चंद्रकांत बख्शी एंड मोहन मसालो. सो
लीडिंग दोज कैरेक्टर ऑन स्टेज विथ डिफरेंट एज ग्रुप्स, You had already मैंने done. इतनी सारी बार किया था ये Yes, स्टेज पे और आगे भी yes. दूसरे प्लेज में. सो आई वॉज नॉट वरीड और स्ट्रेस्ड अबाउट दैट. दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. इन फैक्ट आई ट्रीटेड द होल सीरीज लाइक अ मोनोलॉग इन माई माइंड. Interesting. और बायोग्राफिकल कैरेक्टर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगती है कि उनकी स्टोरी, उनकी कहानी, उनके फोटोग्राफ्स, उनका लुक, जो भी हुआ वो सब पूरी दुनिया को पता है. सिर्फ उस टाइम पे उनके दिमाग में जो चल रहा होता था वो किसी को नहीं पता. दैट इज़ ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन. Correct. You have that advantage. Yes. सो दैट इज़ एक्टर्स प्लेस. आई हैड टू जस्ट टच दोज नोट्स. बाकी सब तो सबको पता है कि क्या हुआ, कौन सा स्कैम हुआ, तब तब उनके आसपास कौन थे, किसने हाँ, कैसे रिएक्ट कहानी किया. तो पता है. हाँ. तो ये एक चीज़ ऐसी थी विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लोर. एंड बिकॉज आई हैड डन अ लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स ऑन स्टेज, Biopics almost. biopics हाँ, so, and monologues. हाँ. So I could actually manage to inner voice, yeah. inner voice के through. So then that worked very well. The biggest struggle for me was to gain weight. Okay. मुझे उतना, क्योंकि मेरा जो फिजिक था वो इट वाज ऑलवेज लीन. Lean. I envy you, but yes. तो मतलब मेरे लिए वो बहुत मेहनत का काम था यार. मतलब मैंने इतना खाया है उन दिनों में. हमने 6 से 7 तो लुक टेस्ट किए हैं. वो ग्रेजुअली भी पुट ऑन कर रहे थे ना आप. ग्रेजुअली, हाँ, पर हाँ. 6 से 7 लुक टेस्ट. एक में तो बॉडी सूट ट्राई किया, डेंचर्स ट्राई किए और रुई लगा के ट्राई किया कि सब बड़ा दिखना पड़ेगा. एंड दिस वाज द फर्स्ट एवर मुस्टैच लुक दैट आई हैड. Okay. इसके पहले मैंने मुस्टैच कभी रखी नहीं लगे नहीं थे. हाँ. थी. तो वो ट्रायल किए उसमें. और क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्मेट है, हाँ. अब इससे पहले मैंने गुजराती फिल्में की थी, सो आई नो द डिफरेंस बिटवीन स्टेज एंड फिल्म. Yes, but this is series now. सीरीज. अब फिल्म में भी क्या होता है ना कि हम लीनियर शूट करते नहीं हैं. हाँ. तो कभी ये, कभी वो, कभी Correct. दिस दैट. एंड ऑल्सो इमोशनल कंटिन्यूटी मेंटेन करना इज अ डिफरेंट टास्क. This is even tougher now. अब इसमें तो इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट, मतलब लंबे टाइम तक. और इसमें एक दिन में मैं 3 अलग अलग एज Ages ग्रुप भी प्ले कर कर रहा हूँ. अरे बाप रे. कभी बॉल्ड पैच के साथ उसी दिन पे, उसी, बिकॉज लोकेशन बेस्ड होता है पूरा शेड्यूलिंग. तो दोज वर द थिंग्स विच वर देयर इन माई माइंड कि ये होगा. सिर्फ उसका बॉडी लैंग्वेज और ये जो क्रिएट करना था, उसमें मी एंड हंसल सर वी स्पोक अबाउट इट दैट लेट्स नॉट गो फॉर मिमिकिंग हिम, Right. बिकॉज उसमें वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा स्पेस. सो वी ट्राई टू क्रिएट आवर वर्जन ऑफ हर्षद मेहता. बिकॉज मैं वैसे ही उनके जैसे दिख तो नहीं सकता था भी नहीं कोई एंगल से. तो वहीं पर वो मिथ ब्रेक हो जा रहा है. सो बॉडी लैंग्वेज में और उसमें भी. सो देन वो जो एक वन साइडेड स्माइल रखी थी, अ लिटिल वाइड वॉक जो है वो, बॉडी पोस्चर्स जो है. These were all personal choices that you Personal went with choices. from the understanding of the kind of person he हाँ. was. Yeah, which और I think, yeah. क्योंकि वो जर्नी कहाँ से खेलनी थी मुझे कि एस्पिरेशन, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो, ये ही पूरा ट्रेजेक्टरी था. Correct. तो ऐसे कोई बॉडी ट्रेट्स, ऐसे कोई पर्सनल फिजिकल ट्रेट्स पकड़े जाएं जिसको आप ग्रेजुअली चेंज कर सको, आपके इंटरप्रिटेशन में. Correct. विच स्टिल लुक्स द सेम पर्सन Yes, हु absolutely. चेंज्ड ओवर द टाइम. Absolutely. एकदम ड्रास्टिक डिफरेंट ना लगे. हाँ. तो मैंने हंसल सर को फ़ोन किया एक दिन कि सर ये आप एक बार मिलते हैं, हम रीडिंग करते हैं, मैंने ये सोचा. ले तुझे जो सोचा है तू कर लेना, पर ओवरडू कुछ मत करना. मेक इट अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ एंड योर बॉडी. Right. जिस दिन मुझे पता चलेगा तू कुछ कर रहा है, दैट विल नॉट वर्क. सो Nice. दैट वर्क लाइक अ गुरु मंत्र एक्चुअली. And did he say Lala or was that yours? दैट इज Karan Vyas, the dialogue writer. He put it in. He put it in. But he never said it. We don't know this. We don't know this. There was something. But then there are a couple of people who I met after the show, Huh. it was released. They said that he was exactly the same. he would say, He would say these words. "Wow," and you didn't know that. I didn't know that. Okay, but then credit to So the that's writer, magic. and yeah, again, of course. And so, talking again about just preparation before we move ahead. So, like for a role like this, of course, you do a preparation like that. But say when you did like the short film in Modern Love, for example, where you're playing a gay character, what kind of prep do you do for something like that? So उसमें ऐसा था कि see we have seen lot of people from all these communities. Of course, yeah. तो सबका बॉडी लैंग्वेज सेम नहीं होता. नहीं होता और वो बड़ी ट्रिकी जगह है बिकॉज आप कैरिकेचर नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. और अब तक मैंने जितनी फिल्मों में भी ये देखा है, मेन स्ट्रीम फिल्मों में भी ये देखा है, these topics were always touched upon with the layer of comedy. Either comedy or not properly represented. Correct, absolutely. So I was very clear in my mind. I just wanted Hansal sir's approval to this कि सर इसको वैसे तो प्ले नहीं करेंगे हम. मतलब
फेमिनाइन तो नहीं दिखना करना। वैसा तो करना नहीं है हमें. Clearly normal He- as he because was- it is normal. He was clear So, with this कि yes, ये नहीं करना. yes. Like, he's a normal guy. It's just that his inner self is different, right? He thinks differently. His orientation is different. So we'll play it that way. But वो हल्का सा जो touch है ना, हाँ. during his smile, Right. when he is in But full that's elements, a internal process. Internal process. Because it's coming from within. which translates. बहुत internal होता If है. you're thinking it, Yeah. it'll So show. like if your hand is this Huh. and if your hand is this, it's It's- just this yeah. little different, Wow. which can change the character. That's And true. at a correct time. Right, right. सो वो स्माइल में हल्का सा चेंज, वॉक में बहुत सटल सा चेंज, और रेगुलर में भी नहीं, उस पॉइंट पे व्हेन ही टचेस दोज इमोशंस Yeah. इट चेंजेस, You see a little. यू hint सी of अ it. लिटिल. तो वो है, आपको धीरे धीरे पता चलता है. No, that in fact was what was in fact scam, of course, when you're trying, but this was a more important question for me because I was like, I really liked what you had done. Yeah, moving thoda aage, scam, of course, cut to after scam, life changed, I'm assuming, and things went completely crazy, and you, I know, are perhaps the busiest person in the country right now. So right, so I mean, I was talking to Kajal and she said हमारा backlog अब खत्म हो रहा है, तो मतलब so you can imagine कि कितना चल रहा था. But what I wanted to ask you is two questions actually. One is, post that I am assuming कि बेतहाशा ऑफर आए हुए होंगे. आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? क्योंकि सालों की ट्रेनिंग वैसे हो गई है दिमाग की हाँ. कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, इफ आई राइट लाइक द स्क्रिप्ट, इफ आई गेट द कैरेक्टर इन द वर्ल्ड राइट, देन आई डू इट. So script is key. It doesn't matter Script who the is key. people are who are No, making no, it. no, That doesn't bother you. एंड ऑफ कोर्स द डायरेक्टर, बिकॉज उनका विजन जो है वही ट्रांसलेट होने वाला है. Correct. So these are two most critical things which I consider while saying yes or no. And now, obviously, in the Hindi industry, you're very sought after. Will you continue your relationship with the Gujarati industry? I know you just released a Gujarati film. Yes. But is that something that you consciously do? Yes. तो मतलब आप at all points of time रखेंगे वो रिश्ता. Absolutely. वो आप consciously In fact, रखोगे. after 15 days, I'll go and shoot a Gujarati film. Gujarati series Oh, series. Okay. with which another a Gujarati platform started 2 Oh, years wow. back. Okay. Okay, wonderful. So you're maintaining that. Yeah. In fact, I want to do other regional cinema also. And offer आए हैं? ना अभी तक पता नहीं चला है, बट आई वांट टू डू, जैसे मराठी बहुत अच्छा काम होता है, मलयालम बहुत अच्छा काम होता है, मलयालम तो बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल. So तो ऐसा कुछ अलग अलग भाषा में करने मिलेगा तो. बिकॉज आई डोंट नो, आई हैव लर्नड वन थिंग व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग मोहन मसाला इन 3 different languages, yes, that each language has a different grammar of performance. yes, absolutely. Not only in the writing and reading, the performance का grammar भी change हो जाता है. It's a very interesting world to explore. Because your audience is changing. ऑडियंस भी चेंज हो, जैसे अभी एक ही जोक आप हिंदी में बोलो और इंग्लिश में बोलो, उसका पिचिंग ही अलग है. हाँ. तो उस हिसाब से व्हेन यू परफॉर्म दोज थिंग्स, everything will change. We have less time, so we have to go into something which is like a rapid fire. मैं ज़्यादा रैपिड नहीं होता, मैं बहुत फास्ट नहीं हूँ वैसे, तो आपको भी होने की ज़रूरत नहीं है. तो आई एम मूविंग टू दिस सिंगल लाइन वाले आंसर जो होते हैं, मतलब आप ज़्यादा भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है. मेरे क्वेश्चन छोटे हैं. आपकी जो जर्नी है इन दिस राइट नाउ पर्टिकुलरली, एंड बिकॉज यू मेड सर्टन चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूइंग द जॉब एंड ऑल ऑफ दैट, are there any opportunities that you miss that you regret? Is there something that you wish you had done, something, or wish you had not done? Not anymore. पहले ऐसा होता था, पर अब होता नहीं था. लगता ऐसा. अच्छा, but अब नहीं लगता ऐसा. आई मीन जस्ट टू एलैबोरेट हाँ. इन ऑन दिस, कि मुझे पहले ऐसा बहुत लगता था कि यार मैं शायद मुंबई में अगर जाके कॉलेज कर लेता तो जल्दी से इस फील्ड में आ सकता था, शायद बहुत जल्दी लोगों को थिएटर में जान सकता, मिल सकता, कर सकता, जल्दी जर्नी शुरू हो जाती. या आप जॉब थोड़ा अर्लियर छोड़ के. हाँ, तो मतलब मैं थोड़ा सा जल्दी शुरू करता ना, तो मतलब अगर मैं अर्ली 30s में, लेट 20s में आ जाता तो मतलब अलग बन जाते. पर स्कैम के बाद दिस परसेप्शन चेंज्ड इन माय माइंड, जो हुआ बहुत सही टाइम पे हुआ. Correct. क्योंकि अगर इतने सालों का जो काम किया है वो कहीं जाके वो नहीं होता ना, तो मैं स्कैम में जो कर पाया शायद नहीं कर पाता. Nice. As an actor, who are your inspirations? Who are people whose work you really look up to? Oh, there are a lot of people यार. Is there someone from the Gujarati? So Sanjeev Kumar Okay, okay. is one guy who did Gujarati theatre, Gujarati films and Hindi films also. I have been to an auditorium in Surat which is named after him. Sanjeev Kumar There I have been. He's from Surat. Yes, From my yes, my yes, city. yes, yes. पर उनकी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग so रही he is है, an and he's a inspiring- phenomenal actor. Of course. Then of course मतलब
अमिताभ बच्चन ने जिस हिसाब से इतने सालों से अपने आप को रीइन्वेंट किया है ना हर एक जनरेशन के लिए, दैट इज़ रियली इंस्पिरेशनल. एंड इरफान खान ऑफ कोर्स, मतलब द काइंड ऑफ क्रिएटर दैट कैरेक्टर्स दैट ही क्रिएटेड. सो Which my next question is that for someone who would be interested in watching Gujarati content, whether it's a play or a series or a film, which you are not part of, because आपके fan तो देख ही लेंगे वो, but what would you recommend so there are as an introduction? as an introduction to Gujarati film, I would say you must watch Hellaro, Okay, the film that won national award. जो कच्छ में शूट हुई थी. कच्छ में शूट हुई थी. Okay. Very well made film. Okay. Lovely film. Okay. So you start with Hellaro. मैंने तो रश्मि रॉकेट के दौरान देखी थी रिसर्च के तौर पे. हाँ तो हाँ. What a lovely film. Yes, absolutely. और जहाँ तक नाटक की बात है तो गुजराती में बहुत अच्छे अच्छे नाटक बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाटक बनते हैं. अभी करंटली जो प्ले चल रहा है जिसका अभी गुजराती से हिंदी में रूपांतरण हुआ है, सौम्य जोशी का नाटक है. Okay. वेलकम जिंदगी. Welcome Zindagi. Okay. Lovely. People can note that. The best piece of advice you have received about acting from anyone? From anyone is there are a lot of one-liners about acting that are still जो with आपको me. बोले गए हैं. हाँ, मतलब अलग अलग टाइम पे कहीं से सुने हैं, कहीं पर ये किया है. एक्टिंग में ऐसा है कि एक्शन और कट के बीच में परफॉर्म नहीं करना है. क्या बात है. हाँ. Just be there. And my personal favorite line is actor should know when to stop. That's a great line. So less is more वाला जो हिसाब है ना, yeah, that's Can say this to many actors. And my last question, an Indian play, not Gujarati, an Indian play that you watched that blew you away, that you loved, and so you're saying not Gujarati. not Gujarati, ideally. नसीर साहब का प्ले देखा था मैंने, कौन सा? फादर. हाँ. रिसेंटली, मतलब वो तो उनके पहले भी मैंने उनका जो ये देखा था, इसमत आपा के नाम. हाँ, इसमत आपा के नाम. हाँ. छोटे छोटे मोनोलॉग्स थे ना. हाँ, करेक्ट. नसीर भाई, रत्ना मैम और हिबा. हाँ. And why? What was so special about that? सो द स्पेशल इसके इतना सिंपल फॉर्म है वो स्टोरी टेलिंग का. बात करना है. और उसमें जो छोटे छोटे न्यूआंसेस होते हैं ना, हाँ. कि उठ के उसमें वो हाथ धो रहे हैं उसके साथ, और मतलब उसमें एक शॉल के साथ एक कुछ करते शॉल के हैं. साथ वो इतना छोटा है, बट दैट क्रिएटेड द होल वर्ल्ड अराउंड. Right. कि हम आई कुड एक्चुअली सी Yes. इट ट्रांसपोर्टेड मी फ्रॉम दैट ऑडिटोरियम सीट टू दैट वर्ल्ड. Yeah. आई फेल्ट दैट आई एम पीपिंग इन समबडीज हाउस एंड वाचिंग इट. सो दैट वाज अ मोमेंट एक्चुअली. Lovely. This has been great, Pratik. Thank you so much. I am so glad that इसी बहाने हमने बात कर ली. हमारी एक्चुअली हुई नहीं है. हाँ. व्हाट्सएप पे 1-2 बार हुई है. इसी बहाने हमने हैंग कर लिया. But thank you so much for being a part of this. It was absolutely wonderful. Thank you very much for having me. Hi, this is Pratik Gandhi, and I had a great time on Adyam podcast, unscripted with Akash Khurana. You can stream this podcast on BingeSpot, Spotify, Apple Podcast, or wherever you get your podcasts from. So guys, don't forget to follow Adyam on Instagram and YouTube for more podcasts.